Hello students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So today we are going to study a very beautiful poem, a very heart-touching poem. Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast, composed by an Anglo-American poet. W.H. Auden was born in United Kingdom in 1907 and he passed away from this mortal world in the year 1973. So you can see that he was a modern poet, and because his early life had been passed in United Kingdom and the later period of his life was passed in America, that is why he is called an Anglo-American poet. Okay, so we can say that he was very versatile poet and he was always serious for the poems, for writing his poem. He was a very serious poet. That means to say he never wrote poetry for a fun. He really touched the deep human heart, deep feelings of human heart, and always left a meaning, symbolic meaning in his poems. So let us start this beautiful poem. Now the leaves are falling fast. So the poem is completely symbolic one. Students, I would suggest you just to keep your books with you, books and pencils also with you, to write the meanings of the words. Okay, so now the leaves are falling fast. If we see the title of the poem, title of the poem itself is a symbolic one. Now the leaves are falling fast. Actually, the poet is actually trying to compare or trying to show or symbolize the life of man, or we can say the arrival of death in the life of man with the falling of the leaves. So which is the season in which the leaves are often fallen? Autumn. Obviously autumn. So autumn is the season. Autumn जैसे आप कहते हैं शीत ऋतु भी कहते हैं और पतझड़ ऋतु भी बोलते हैं. Also called as शीत ऋतु and known as शीत ऋतु also in हिंदी. Okay, तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो बात कर रहे हैं कि ऑटम सीजन में जिस तरीके से पेड़ों से धीरे धीरे करके सारे के सारे पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और अंत में वो जो पेड़ होता है मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक इसी तरीके से जो इंसान होता है, इंसान के जीवन में भी एक ऑटम सीजन आता है, यानी कि उसके अंत का समय आता है जिस समय उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचती. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हिज बॉडी, हिज स्ट्रक्चर, his life are lost, and finally he is also mingled with the soil of this earth. Okay, so falling of the leaves has been compared with the approaching death in human life. Okay, so in this poem the title Now the Leaves Are Falling Fast is symbolizing the arrival of the death in a human life. Okay, so see the first para. Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. Now the leaves are falling fast. So the poet is saying the autumn season has been arrived. The autumn season has been arrived, and with that the time for the leaves have also come to departure or to say goodbye to the branches of trees. Okay, autumn season आ चुका है और अब उस पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके जाने का समय भी आ चुका है. Nurse's flowers will not last.
Narcissus flowers. Narcissus flower means the flowers, those small plants, saplings, we can say, the small flowers that are flowers or plants that have been grown under the shade of big trees. Okay, तो वो जो बिग बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनके लिए एक तरह से क्या है, एक शेल्टर होते हैं, ठीक है, एक सहारा होते हैं। उस सहारे के नीचे, उनके अंडर में ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो उगते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज सेइंग नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी वो सारे के सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं जो कि बड़े से पेड़ के नीचे छाया में उग चुके हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे। उनका भी समय आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी इस दुनिया को जल्दी ही छोड़कर जाने वाले हैं। Nurses to the graves are gone. Nurses, what is nurse here? Means nurses, the poet here is talking about the same big trees. ओके, वही सेम बिग ट्रीज, बड़े पेड़ जिसके अंडर में ये सारे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उगे हुए हैं, ठीक है। उनकी जो बात है, सॉरी, पोइट जो है उनकी बात कर रहे हैं कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, मीन्स दोज ट्रीज अंडर विच these small flowers had taken shelter have been grown up. Those nurses, means nurses यहाँ पर पोइट एक्चुअली क्यों बोल रहे हैं, उनके लिए वो एक तरह से उनके लिए किसका काम कर रहे थे, नर्स का काम कर रहे थे, यानी कि उनके लिए छाया का काम कर रहे थे, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे। तो ये बोल रहे हैं, जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, यानी कि वो पेड़ जिन लोगों ने अभी तक, मतलब वो पेड़ जिन्होंने अभी तक इनको छाया दी हुई थी, वो भी, उनमें से भी काफ़ी जो पेड़ हैं वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स को रोलिंग ऑन, दैट मीन्स टू से प्रैम्स, व्हाट इज प्रैम? प्रैम इज दैट 4-wheel carriage in which you must have often noticed or seen that those small types of carriages in which infants, very small children, infants are kept, and they used to be taken on round by their parents. Okay, तो वो जो छोटी सी गाड़ी होती है, प्रैम होते हैं, उसमें जो उनके पेरेंट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों को घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका पोइट का क्या कहने का मीनिंग है कि उससे भी यहाँ पर एक्चुअली दिस इज कम्प्लीटली अ सिम्बॉलिक पॉम। ओके, सो एवरी स्टैंजा इज हैविंग 2 मीनिंग्स। ओके, तो यहाँ पर जो पोइट है फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि एंड द प्रैम्स को रोलिंग, और उनके जो उनसे भी जो छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है, जो कि अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, जो कि इतनी एनर्जी दिखा रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। वन डे देयर विल कम अ टाइम व्हेन दे ऑल्सो हैव टू से गुड बाय। Okay, so the poet look from the beginning again. Now the leaves are falling fast. Nurses flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. तो इस तरीके से आउटर मीनिंग में अगर हम देखते हैं, आउटवर्डली अगर हम देखते हैं, तो जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि ऑटम सीजन आ चुका है, और जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो कि बड़े पेड़ों की छांव में होते हैं, वो भी चले जाएंगे, यानी ऑटम सीजन आ चुका है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी पत्तियां भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। उसके बाद उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनको अभी तक ये पेड़ जो थे शरण दिए हुए थे, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, विल नॉट लास्ट, ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। और नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, और उसके बाद वो पेड़ जिन्होंने इनको छाया दी थी, उनमें से काफ़ी ऐसे पेड़ जो हैं वो अब जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो बिल्कुल सबसे छोटे पौधे हैं, एक दिन उनका भी नंबर आएगा। सो द पोइट इज एक्चुअली शोइंग अस अ लाइफ सर्कल, कंप्लीट लाइफ सर्कल दैट इज इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द एजेस लॉन्ग। ओके, एक पीढ़ी आती है, ठीक है, वो इस पृथ्वी पर जीती है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं,
फिर उनके जो वंशज होते हैं वो इस धरती पर रहते हैं, इस जीवन को गुजारते हैं, उसके बाद फिर उनका नंबर भी आता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनके वंश का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक लाइफ सर्कल दिखा रहे हैं पोएट। ठीक है, सो सिम्बॉलिकली नाउ लिसन अगेन द सेम स्टेंजा सिम्बॉलिकली। द पोएट इज ट्राइंग टू से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देयर कम्स अ टाइम इन एवरी पर्सन्स लाइफ when he passes through a realization that soon he is going to leave this earth. And what are the things that make him realize with this feeling? Disease, want, pain, all these are the things दैट मेक हिम रियलाइज। जब भी बीमारी आती है, कोई भी दुख है, दर्द है, परेशानी आई, तो वो एक तरीके से उसके लिए इंडिकेशन होता है, कि अब उसके जो दिन हैं वो आ चुके हैं, वो इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द ऑटम सीजन that always arrives in every person's life. Okay, Narcissus flower. So he is actually indicating to the people who have been grown up, who are passing through their old age, or who have been very much diseased. ठीक है, और जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी, जो मतलब बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो उनकी तरफ इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो अब वक्त है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बचा है, लेकिन ये तो जीवन का अटल सत्य है कि एक दिन मृत्यु का आना ही है। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी कि वो सारे के सारे, यहाँ पर नर्सिस फ्लावर्स का मीनिंग क्या है कि नर्सिस मीन्स our elders who have protected us till now, ओके। तो नर्सिस फ्लावर यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे जो छोटे, यानी जिनको अभी तक तुमने शरण दी थी, जो तुम्हारे अंडर में जो पले बड़े हैं, यानी तुमसे छोटे जो हैं, उनका भी नंबर आएगा, वो भी नहीं बचेंगे। जब तुम लोग चले जाओगे तो फिर उनका भी नंबर आएगा जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। नर्सिस टू द ग्रेव्स आर कौन? तो यहाँ पर नर्सिस कौन है? वही जो बड़े लोग हमारे, जो कि जिन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया, हमारे बड़े वो लोग, तो वो सारे के सारे हमारे कहना चाहिए जो प्रोटेक्शन हमारे लिए ढाल बन करके हमारे साथ खड़े थे, उनमें से भी काफ़ी लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और वो पौधे, वो छोटे बच्चे जिनको हमने जिनको उन लोगों ने शरण दी थी, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। ओके, and the prems go rolling on here you can symbolize with the word strolling on। और वो छोटे छोटे बच्चे इन्फेंट जो कि अपने प्रेम में घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो धीरे धीरे बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी खुशी के साथ बड़े हो रहे हैं। एक दिन उनका भी नंबर आएगा, वो भी इसी में क्या है वो, यानी कि यहाँ पर रोलिंग प्रेम जो है, प्रेम वो रोलिंग ऑन पोइट जो है वो ये क्या कहना चाहते हैं कि वो छोटा सा जो बच्चा है वो भी जब धीरे धीरे बड़ा होता है, ओके, ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस नेचर, he is enjoying the beauty of nature, he is passing through a very beautiful life, he wants to make his career, he wants to do something in his life, but every time this realization of death also goes on at the back of his mind। ओके, आर यू गेटिंग? मीन्स वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे विद फुल एनर्जी ही इज़ ग्रोइंग अप, ओके, बड़ा हो रहा है, सब काम कर रहा है, सारी खुशियाँ मना रहा है, इस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो मृत्यु की रियलाइजेशन है वो बार बार उसके मन में आती है, एंड एवरी टाइम ही इज़ फाउंड स्ट्रॉलिंग, दैट मीन्स
लड़खड़ाता हुआ से दिखाई देता है, स्ट्रॉलिंग बिटवीन the circle of life and death. Okay, means at the back of mind he always has that one day he has also have to pass away. So why he is doing or making so many efforts, why he is trying to achieve something in life when the ultimate aim of our life is only death? वो इतनी सब मेहनत क्यों कर रहा है? ठीक है, तो उसको वो जो रियलाइजेशन है वो ठीक तरीके से ना जीने देता है ना मरने देता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो पोइट है ये वर्ड यूज़ कर रहा है, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। वो जो छोटा सा बच्चा जो अपने प्रेम में खुशी खुशी घूम रहा है, उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं इसमें जीवन और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष है उसमें घूम रही है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, pluck us from the real delight, and the active hands must freeze, lonely on the separate knees. So this is the second para of the poem, Whispering Neighbors. What is the meaning of whispering neighbors? Death agents, the agents of death. ओके, यानी कि मृत्यु के दूत, यू कैन से यमराज, और यमराज के दूत हम कह सकते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। सो नाउ द पोइट इज सेइंग दोज एजेंट्स ऑफ डेथ, symbolically he wants to say which are the agents of death, you can say disease, pain, आर डिसीज, आर प्रॉब्लम, बीमारियाँ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन की, ठीक है, बीमारी जिसका कोई अंत नहीं है, या ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है ना, तो क्या होता है, जो भी हमारे 5 सेंसेस हो गए वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, समाप्त होते जाते हैं। He is not able to see properly, he is not able to speak properly, the sense of touch or sense of taste we can say, he keeps on losing everything. Okay, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो चीज़ें हैं, मतलब कि उसकी जो एनर्जी है वो फिनिश होती जाती है। तो विस्परिंग एजेंट्स लेफ्ट एंड राइट जो उसको एहसास दिलाते हैं, बार बार एहसास दिलाते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, द सेम थिंग कि उसके मन में ये बार बार क्या होता है, रियल डिलाइट, वो जो खुशी, यानी कि वो जो कुछ मोमेंट्स खुशी के गुजार भी रहा होता है, वो बार बार वो जो ये रियलाइजेशन ऑफ डेथ है, ये जो एजेंट्स ऑफ डेथ है उसको एक तरह से हॉन्टिंग करते हैं। दे कीप ऑन हॉन्टिंग ओवर हिज माइंड, दे कीप ऑन होवरिंग हिज माइंड, दीज एजेंट्स ऑफ डेथ कीप ऑन होवरिंग ओवर हिज माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस लाइफ फॉर लॉन्ग, ठीक है, तुम ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में रहने वाले नहीं हो। तो ये जो एजेंट ऑफ डेथ है उसको बार बार रियलाइज कराते हैं। प्लक मीन्स क्या होता है, टू प्लक अ फ्लावर, जैसे कि प्लक अ फ्लावर, एक फूल को उसके पौधे से अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये जो रियलाइजेशन है वो बार बार इंसान को उसकी खुशियों से दूर कर देता है, ठीक है, उसको बार बार उसके जो कुछ पल जो खुशी के गुजार रहा होता है उसको उससे दूर कर देता है। And the active hands must freeze, lonely on the separate knees. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 मीनिंग्स हैं कि and the active hands must freeze, and that realization suddenly freezes him. His active hands are freezed by the realization of arrival of death, of that coming death. Okay, उसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब कि वो ठीक तरीके से क्या है कि वो जी नहीं पा रहा है, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, ओके, ठीक है। और वो रियलाइजेशन जो क्या है वो मृत्यु से पहले ही उसको बिल्कुल इस तरीके से क्या कहना चाहिए, अथा कर देता है कि जैसे कि एक्टिव हैंड्स, जैसे हैंड्स अब एक्टिव हैं तो दे आर ऑलवेज टुगेदर, मोस्टली टुगेदर, ओके, बट सडनली दैट सडन सेंस ऑफ डेथ freezes him, shakes him, and then he leaves his hands separately on his knees. Okay, and the second meaning is that कि after death, यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि अचानक से अपने हाथों को ऐसे छोड़ देता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना,
जो डेड बॉडी होती है उसके हाथ ऐसे कभी मिले हुए नहीं होते हैं, है ना, बिल्कुल सीधे होते हैं और घुटनों तक उसको टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो पॉइंट है वो यही कहना चाह रहे हैं कि इंसान का जब तक वो समय नहीं आता है कि अपने हाथों को पूरी तरीके से छोड़ देता है, यानी कि अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो जो डेथ एजेंट हैं, वो एजेंट्स जो हैं वो उसको बार बार डराते रहते हैं, बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि उसकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो अभी ज़्यादा नहीं बचे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। Dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove, in false attitude of love. Dead in hundreds at the back. Now the poet is saying that many people have already passed away. Hundreds and thousands of people have already passed away before us. Follow wooden in our track. Wooden here means that we can say coffin. You know, coffin is made up of wood. So follow wooden in our track means रास्ते में हजारों लोग जो हैं वो पहले हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं, और काफ़ी लोग अभी भी रास्ते में हैं जिनको हम देख पा रहे हैं कॉफिन में होकर के गुजर रहे हैं, हमारे रास्ते से, हमारे बीच रास्ते से गुजर रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे ही सामने कुछ लोग अब कॉफिन में गुजर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। Now, here the poet is leaving a very deep meaning. He is saying arms raised stiffly. What is the meaning of stiffy? Stiffy means harden. जैसे कि डेथ के बाद आपको पता है ना, जो पूरी की पूरी बॉडी के हार्ड पड़ जाती है ना, harden. To reprove. Reprove here means scolding or rebuke. Scolding or rebuke. In false attitude of love. उन कॉफिन्स में जिसमें डेड बॉडी हमारी आंखों के सामने जा रही है, उस समय ऐसा एहसास होता है, ऐसी फीलिंग होती है कि वो जो हार्डन हैंड है, ठीक है, स्टिफी टू रिप्रूव, यानी कि ऐसा लगता है वो जो हार्ड हैंड है वो एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं उन सारे लोगों को, गुस्से में पॉइंट आउट कर रहे हैं उन सारे लोगों को। रिब्यूकिंग मीन्स रिप्रूव मीन्स रिब्यूकिंग और स्कोल्डिंग, उनको डांटना चाहते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जो अब तुम लव दिखा रहे हो ना, ये अब मत दिखाओ। ये जो तुम्हारा झूठा प्रेम अब दिखा रहे हो, ये अब तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही प्रेम तुमको दिखाना था तो उस वक्त दिखाते जब हम परेशानी से गुजर रहे थे, हम बुढ़ापे से गुजर रहे थे, हमको तुम्हारी ज़रूरत थी, उस समय तुम कभी करीब नहीं आए और हमारी बुराई करते रहे। और आज तुम कह रहे हो, एज यू नो दैट एट द टाइम ऑफ दैट डेथ पीपल स्टार्ट प्रेजिंग द पर्सन हु हैज़ पास्ड अवे, that the person was very nice, the person was very polite, he was a very kind hearted person, or she was a very great lady. Okay, लेकिन जब तक वो जिंदा थे, ठीक है, किसी ने उनको नहीं पूछा। ठीक है, होता है ना कि जब तक कोई इंसान जिंदा होता है उसकी कोई कदर नहीं करता, कोई उसको पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन आज क्या है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या हर कोई क्या उसकी क्या तारीफ करता है। तो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड फीट टू रीअप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। सो द यू कैन से द स्पिरिट ऑफ the person, the soul of the person, when the spirit of the person sees that the people who had never come to him to ask about his health, about his problems, now today they are praising when he has left this world or she has left this world. So it seems like they are trying to scold those people not to show such kind of false love now. Now we don't need your such kinds of love if you were not available for us when we were alive. Starving through the leafless wood. Fourth stanza. Starving through the leafless wood.
Trolls run, scolding for their food. And the nightingale is dumb, and the angel will not come. See this very beautiful stanza. The poet is saying, starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food. यहाँ पर जो पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि स्टार्विंग मीन्स टू डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना, थ्रू द लीफलेस वुड, वुड हेयर मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो जंगल है, ऐसा लगता है बिना पत्तियों के ऑटम सीजन में वो पूरा का पूरा जो जंगल है पूरी तरह से सुनसान हो चुका है, और मतलब कि वहाँ के जितने भी पशु पक्षी जो हैं वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। एक्चुअली ये जो वर्ड है ट्रॉल्स स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि सिम्बॉलिकली जो पोइट है वो ये कहना चाह रहे हैं, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। यहाँ पर लीफलेस वुड से मतलब यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ एनर्जी वी कैन से। जैसे कि जो पेड़ होता है ऑटम सीजन में उस पेड़ की ब्रांचेस से सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जो इंसान होता है जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके सारे सेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, सारे जितने भी सेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे करके फिनिश होना शुरू हो जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बोलने की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट जो होता है वो उसका एहसास नहीं होता है, सुनना मतलब धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लीफलेस वुड इसीलिए बोल रहे हैं, यानी कि जो ओल्ड एज होती है उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो इंसान की जो एनर्जी है पूरी तरीके से खत्म होती जाती है। एंड ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। तो यहाँ पर ट्रोल्स जो कि प्रेत आत्माएं जो स्पिरिट्स हैं उसका कंपैरिजन एक्चुअली किससे किया गया है, विथ ऑल दोज एस्पिरेशंस, विथ ऑल दोज होप्स, डिजायर्स that have not been fulfilled in our life. So with all those unfulfilled desires, aspirations, our wants, these are actually symbolized with the spirits. यानी जैसे जैसे इंसान जो है वो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है, बार बार उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो अधूरी इच्छाएं जो हैं वो उसको परेशान करती हैं, उसको तड़पाती हैं। ऐसा लगता है फूड यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन वो अभी भी तड़प रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आज भी शायद उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन वो जो इच्छाएं हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं अंत तक, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर, वो क्या स्टार्विंग यानी कि भूख से मर रही हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है उनकी इच्छाएं जो है बार बार आज भी उन इच्छाओं की प्राप्ति की भूख में क्या है घूम रही है, प्रेत आत्माओं की तरीके से उनको हॉन्ट कर रही है, उनको परेशान कर रही हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। नाइटिंगेल, अब यहाँ पर जो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एक लीफलेस वुड पर किसी भी तरीके का कोई पक्षी जो है वो नहीं आना चाहता, तो नाइटिंगेल जो है वो जब वो देख रही है कि अब इस पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं है तो वो भी बिल्कुल डम हो चुकी है, मूक पड़ चुकी है, वो कुछ नहीं बोल रही है और वो भी अपने लिए क्या उस मृत्यु का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि मेरी भी मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं है। Okay, so she is silently waiting for the approaching death. But here the poet is actually symbolizing this dumbness of the angel with the agent of death. With the agent of death. यानी कि जो पोइट है वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इंसान जो है वो जैसे जैसे मृत्यु की तरफ बढ़ता है उसकी जो इच्छाएं हैं वो
अभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, उसको हॉन्ट करती रहती हैं, उसको तड़पाती रहती हैं, प्रेत आत्माओं की तरह से परेशान करती रहती हैं कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, अब तुम ऐसे ही चले जाओगे इस धरती से। तो वो जो इच्छाएं हैं उसे परेशान करती हैं और उस तड़प के साथ धीरे 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 करके क्या है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओके, एंड द एंजल्स विल नॉट कम। और उस समय उसको ये भी पता होता है कि अब किसी भी तरीके की इच्छा, किसी भी तरीके की एस्पिरेशन, कोई भी चीज़ जो है, यानी कि ऊपर से देवदूत भी आ जाए, ठीक है, वो भी उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मृत्यु निश्चित है और वो उसे किसी भी तरीके के कोई भी एंजल, कोई भी उसको नहीं बचा सकता। हेयर एंजल मीन्स होप्स। नथिंग कैन सेव हिम फ्रॉम द अप्रोचिंग डेथ। ओके, ही विल अल्टीमेटली हैव टू डाई, he will ultimately have to departure from this mortal world, he will have to leave this world. So nothing can, his hopes, his aspiration, nothing can save him from this approaching death. Cold impossible ahead, list the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. Last distress here means last journey of life of human being. Now see this beautiful last passage, this concluding passage. The poet is saying, cold, impossible ahead, list the mountain's lovely head. Mountain's lovely head is symbolized with the hopes of human being. Hopes of human being. Cold, impossible ahead. तो पोइट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि all the aspiration of his life, all the dreams, all the desires of his life have been left cold, completely cold, and that have been completely impossible because now he is ultimately passing through this world, passing away from this world, he is passing away from this world. So those his hopes or dreams are going to be impossible, वो कभी पूरे नहीं हो सकते, नहीं. But then ultimately the poet is leaving a positive tone. He is saying that all those desires that couldn't be accomplished have been gathered at one place and have been turned into a very huge mountain, and upon that mountain there has been developed a very beautiful, very peaceful peak, and from that peaceful peak a very beautiful waterfall is flowing, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. So the poet is saying, he is symbolizing that white waterfall with the hope that has been suddenly awakened into the heart of the traveler, into the heart of the person who is finally going to departure from this world. So the poet is saying that ultimate hope is actually giving him peace, is filling in his heart a peace that, as we can say, that the death always brings peace. Death always brings peace. It is never cruel. There is a poet actually, I don't remember his name right now. He also says that death is never cruel. People are always afraid of the death, but they are actually never afraid of the death. There is no need to afraid of the death because death is never cruel. Death is always peaceful. Death always brings peace because after death there is only peace. Okay, so person is afraid of only approaching death. He is never afraid of the death actually. Okay, so death is never unkind, that is always peaceful. So the poet here wants to say that ultimately
the traveler feels somewhere peace within his heart that he is going to meet with some of the possibilities. Maybe after this world there is another world where he is going to accomplish all his desires that couldn't be accomplished in this mortal world. Maybe there is another world, or we can say now again that cycle of life and birth has been mentioned by the poet in direct way. He is saying maybe in another world, that means maybe in another life, the traveler is feeling maybe in another life all his incomplete desires may be accomplished. So finally जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो ट्रैवलर है जो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके मन में एक शांति आती है कि आखिर अंत में कहीं ना कहीं वो उसे मुक्ति मिलने वाली है, वो मुक्त होने जा रहा है उन सारी अधूरी इच्छाओं से जो आज तक कभी पूरी नहीं हो पाई। वो उस पेन से दूर होने जा रहा है, अल्टीमेटली एक पीस, एक शांति से मिलने जा रहा है। उसे मुक्ति की फाइनली उसे मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो होप है वो उसको अब वो दर्द नहीं दे रही है, उस मृत्यु का दर्द नहीं दे रही है। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग fast. I hope the explanation is clear to you. Meet you soon with my next chapter. Till then, goodbye. Happy learning.